Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your bio teacher. Welcome to all of you in our online classes. Hope you all will fine. From today, we will start our first chapter, that is chapter number 14, respiration. Respiration is our first chapter. In this chapter, we will study all about respiration, its types, it's the properties of respiratory surfaces, human respiratory system, respiratory diseases, one by one. First of all, we will start from introduction. Introduction से हम start लेंगे. Do you know what is respiration? Respiration is the process by which food is broken down and energy is released. What is energy? Energy is the most important requirement for life. Energy क्या है? एनर्जी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के जितने भी फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं सबको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है. Our body system require energy to do work. In animals, this energy can be obtained only from food. From where we get energy? From food. हम कहाँ से एनर्जी लेते हैं? Obviously from food. Food से. जब हम कुछ खाते हैं हमारी बॉडी में वो जाता है उसकी ब्रेक डाउन होती है और उससे हमारे पास एनर्जी आती है. In the process of cellular respiration, the food energy is made available for the body activities. जो फूड की ब्रेक डाउन होती है ना बॉडी के अंदर, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. फूड इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल्स. फूड कहाँ पे जाता है? फूड जाता है पहले सेल्स में. सेल्स के अंदर इस फूड की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है. डू यू रिमेंबर वेयर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? कहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है? हम पावर हाउस किसको कहते हैं? अपने बॉडी का पावर हाउस हम किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल. इट्स मीन सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ डू यू नो how many types of respiration are there? There are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. Now, what is aerobic respiration? Aerobic respiration is the process by which food is broken down into small pieces in the presence of oxygen. एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस in the absence of oxygen takes place. The process of anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Now, इस पैराग्राफ में हमने क्या स्टडी किया? रिस्पायरेशन की डिफिनेशन, इसकी टाइप्स, two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. Now, next topic is properties of respiratory surfaces. I hope आप सबके पास बुक्स होंगी तो आप अपनी बुक को भी साथ साथ फॉलो करते जाओ. Now, properties of respiratory surfaces. Now, first of all, you should know that what is respiratory surface. Respiratory surface कहते किससे हैं? The area where gaseous exchange with the environment takes place is called respiratory surface. वो एरिया, वो जगह, वो सरफेस जिसके थ्रू exchange of gases takes place between you and your environment, this is called respiratory surface. Like your nose, like lungs. ठीक है? respiratory surface वो एरिया है जहां gaseous exchange takes place. Now, gaseous exchange takes place in all organism. गैसेस का जो एक्सचेंज है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. किस प्रोसेस के जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए. और कौन सी गैसेस का? स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट फ्रॉम द बॉडी. Oxygen go inside the body and carbon dioxide go outside the body. Now, there are some properties of respiratory surface.
which are number one, respiratory surface should be permeable so that gases can pass through it. Respiratory surfaces को permeable होना चाहिए ताकि easily gases का exchange हो सके. Permeable नहीं होगा तो exchange of gases cannot be take place. Number two, respiratory surfaces must be thin for efficient diffusion. जितनी respiratory surface की जो walls हैं वो thin होंगी, exchange of gases जो है वो smoothly और effectively होगा. अगर इसकी वॉल्स थिक होंगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकेगा. जिस तरह अल्वियोलाई आप आगे हम जाके पढ़ेंगे, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर अल्वियोलाई में जाती है, अल्वियोलाई से फिर ब्लड कैपिलरीज में जाती हैं. तो अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज दोनों की वॉल्स का थिन होना जरूरी है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो सके. नाउ नंबर नेक्स्ट, respiratory surfaces should possess large surface area for the exchange of sufficient amount of gases. Respiratory surfaces का जो एरिया है ना ये लार्ज होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो सके, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज से लंग्स वगैरह में आ सके और फिर आउटसाइड द बॉडी जा सके. Now number six, next, it should possess good blood supply. Respiratory surfaces के ऊपर ब्लड का सप्लाई बहुत अच्छा होना चाहिए. ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होना चाहिए. ब्लड कैपिलरीज जितनी ज्यादा होंगी लंग्स के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में जाएगी और बदले में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में आएगी और फिर लंग्स से बॉडी से बाहर जाएगी नोज के थ्रू. Now, number last, there should be good ventilation mechanism. आपके घरों में अक्सर वेंटिलेटर्स होते हैं ना, रोशनदान. What is the function of ventilator? वेंटिलेटर क्या करते हैं? गंदी हवा को रूम से बाहर निकालते हैं और साफ हवा को रूम के अंदर लेके जाते हैं, वेंटिलेशन का काम करते हैं. इसी तरह हमारी जो रिस्पायरेटरी सरफेसेस होते हैं जैसे लंग्स वगैरह, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को आपके बॉडी से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन यानी फ्रेश हवा को आपके ब्लड के अंदर लेके जाते हैं, आपके बॉडी के अंदर लेके जाते हैं ताकि ये ऑक्सीजन फिर सारे बॉडी के सेल्स को पहुंचे और फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प कर सके. तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेसेस. What are the properties of respiratory surfaces? Respiratory surfaces should be permeable. Number two should be thin. Number three should have large surface area. Number four, it should have good blood supply. And number five, it should be good ventilator. Now, next topic is very easy. That is the human respiratory system. अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे. Human respiratory system start from nose, then from pharynx, then trachea, then bronchi, bronchiole and lungs. But first of all, we will define the process of respiratory system. What is respiratory system? To take oxygen from air inside the body and giving out carbon dioxide and water vapor is called respiratory system. Respiratory system की मदद से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आती है. Now, you know that there are two types of respiration. That is external respiration and internal respiration. Respiration की फिर two types है मजीद. एक तो एरोबिक और, लेकिन रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से भी इसकी मजीद फिर टू टाइप्स हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल. एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है अगर बाहर से हवा से ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाती है नोज के थ्रू और फिर जाते जाते लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर ब्लड में जाती है. दिस इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, यानी एक्सटर्नल से बाहर से हवा आपकी बॉडी के अंदर आती है. दिस इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. अब दिस ऑक्सीजन व्हेन रीच टू द लंग्स, this oxygen will go to the blood and from the blood it will go to the cells. Now this is called internal respiration. In external respiration, the exchange of gases takes place between the blood and the lungs. Between the blood and the lungs. While in internal respiration, the exchange of gases takes place between the blood and the tissues and the cells. ठीक है?
अगर लंग्स से ब्लड में जाती है ऑक्सीजन, दिस इज एक्सटर्नल, और जब ब्लड से टिश्यूज में जाती है ऑक्सीजन, दिस इज इंटरनल respiration. Now, there are many organs of respiration involved in the respiratory system, which are nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, lungs, and pleural membrane. First of all, nose. What is nose? आप सबकी नाक है, नोज है. आप अपने नोज को टच करें, टच योर नोज. आप देखेंगे कि हमारी जो नोज है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. Our nose has two chambers. These are called nasal cavities. Inside our nose, there are two nasal cavities. The nasal cavity is the first and visible portion of the respiratory organ. Nasal cavities यानी नाक जो है हमारी ये विजिबल है, नजर आती है, हमारी respiratory organ का फर्स्ट पार्ट है और एक्सटर्नल पार्ट है. ओके, आपके फेस के ऊपर है. And it consists of large irregular cavity divided into two equal parts by a septum. आपके ये जो दो nasal cavities है इनके दरमियान में आप देखिए एक septum, septum एक कट, एक पर्दा, हड्डी हड्डी है, अंदर कार्टिलेज है. इस बोन ने इसको डिवाइड किया हुआ है आपके टू नेजल कैविटीज को. ठीक है, नेजल कैविटीज आर टू इन नंबर एंड दे आर separated from each other by septum. The structure of the human nose is composed of bone, cartilage and fibrofatty tissues. ऊपर आप देखें जो सेप्टम है, it is bony. ये हड्डी बिल्कुल जो ऊपर आपको नजर आती है ये बोनी हड्डी है. और जो आपके नेजल कैविटीज के जो चैम्बर्स है ना साइड बाय साइड, ये आप टच करें तो दिस इज कार्टिलेज, ये एक सॉफ्ट बोन है. और ये सारे हमारी जो नोज है ये फाइब्रोफैटी टिश्यूज, फैटी टिश्यूज से मिल बनी है. लाइंड विद सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, और अंदर जो है इसके सिलिएटेड सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है. आप अपनी नोज को चेक करें तो इसमें अंदर सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. एंड इंटरनली हमारी जो नोज की मेम्ब्रेन है इट इज म्यूकस, इट हैव म्यूकस, ये गीली होती है, मॉइस्ट होती है. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस म्यूकस मेम्ब्रेन? इट विल ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, इट विल ट्रैप ऑक्सीजन. ठीक है, ये जो सीलिया होते हैं, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना नोज की, ये आपके डस्ट पार्टिकल और आपके जितने भी बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स वगैरह होते हैं इनको ट्रैप करेगा. द नेजल हेयर्स फिल्टर द डस्ट पार्टिकल एंड pathogens, sticky substances called mucus, which help in the moisturizing and warming the air due to the presence of rich membrane of the blood capillaries under it. Okay, what is the function of cilia and mucous membrane? It will warm the air, it will trap the dust particle, it will trap the germs like bacteria, and fresh and filtered air will go inside your body. Now, there are some blood capillaries also present inside our nose. And they help to warm the air up to about 30 degrees centigrade depending upon the external temperature. The nose is also an organ of sense of smell. अब और जो नोज़ है इसको हम स्मेल के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको हम रिस्पायरेशन के लिए सांस अंदर लेके जाने के लिए यूज़ करते हैं. और जब हवा आपके नोज़ के अंदर जाती है तो ये वार्म हो जाती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक. बाहर का टेम्परेचर जैसे सर्दियों में तो बहुत कम होता है ना, कभी कभी माइनस में भी चला जाता है. तो जैसे ही ये इतनी ठंडी कूल एयर आपके नोज़ के अंदर जाती है तो आपकी जो नोज़ है वो इसका टेम्परेचर आपके बॉडी के मुताबिक कर देती है ताकि अंदर जाके इसको डिफ्यूजन में इजीली ये डिफ्यूज हो सके, इजीली आपके लंग्स तक जा सके और ब्लड कैपिलरीज में जा सके. नाउ नंबर नेक्स्ट इज द फेरिंग्स. Pharynx is the common aperture for pharynx is the common aperture for both the digestive system and for both respiratory system. Respiratory or digestive system both open into the pharynx. It is a tube-like structure about 12 to 14 centimeter long and it has cone shaped. इसकी जो शेप होती है ना मेहंदी, वो कोन लगाते हैं आप लोग, बिल्कुल जैसे नीचे से बिल्कुल नोकीला और ऊपर से थोड़ा ब्रॉड, तो कोन शेप स्ट्रक्चर इसका होता है. एंड both your nasal cavities and your oral cavities both open into this pharynx.
The pharynx is the part of both the digestive and respiratory system. So d- um, pharynx help in the digestion and respiration. By the same method as in the nose, the air is further warmed and moistened and it passes through the pharynx. जैसे pharynx में हवा पहुंचती है, मजीद ये वार्म हो जाती है, मजीद आप इसका टेम्परेचर आपके बॉडी के टेम्परेचर से मैच करना शुरू हो जाता है और ये एयर मजीद मॉइस्टेंड हो जाती है, मजीद गीली हो जाती है. Now next is the larynx. Larynx, what is larynx? The second name of larynx is voice box. Larynx वो जगह है जहां से आपकी आवाज पैदा होती है. It is a voice box. यहाँ लैरिंग्स वाले रीजन में वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं जो आपस में ऐसे जब टकराते हैं तो अब वॉइस जो है जिस तरह वो गिटार बजता है ना, उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा तारे होती हैं, वो जब हम बजा तारों को ऐसे छेड़ते हैं तो आवाज आती है. इसी तरह वोकल कॉर्ड्स भी आपस में टकराने से उसकी आवाज पैदा होती है. और लैरिंग्स इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. ओके, it consists of two portions, glottis and epiglottis. Glottis and epiglottis. The larynx has a dual function as it provides a passageway for air between the pharynx and trachea, and it is also play important role in the production of voice. Dual function है ना larynx का, ये आपको आवाज को प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और ये लैरिंग्स जो है ये फेरिंग्स के नीचे और ट्रेकिया के ऊपर होता है, तो हवा इस लैरिंग्स से होके ट्रेकिया तक जाएगी. Where larynx lies? Larynx lies between pharynx and trachea. बिल्कुल ट्रेकिया के above larynx is present. As the air from the outside passes through it, it is further moistened, filtered and warm. लैरिंग्स में हवा जो है वो मजीद मॉइस्टेंड हो जाती है, मजीद फिल्टर हो जाती है, यानी बैक्टीरिया हो अगर कोई जर्म्स हो दे विल बी ट्रैप्ड हियर, और मजीद वार्म्ड हो जाती है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. द लैरिंग्स हैज टू fibrous bands called vocal cords. और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लैरिंग्स में vocal cords होते हैं which produce sounds of varying types. During swallowing, जब हम कोई चीज निगलते हैं, the larynx move upward. तो ये larynx थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेता है towards the epiglottis. As you know that larynx consists of two portion, okay, glottis and epiglottis. Epiglottis is just like a lid, बिल्कुल जैसे बॉक्स, बॉक्स का जो निचला पोर्शन दिस इज ग्लॉटिस, और जो बॉक्स का ऊपर वाला ढक्कन होता है ना इट इज जस्ट लाइक एपिग्लॉटिस. तो जब हम कोई चीज सॉल्व करते हैं, जब हम कोई चीज निगलते हैं, तो ये जो लैरिंग्स है ना ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है टुवर्ड्स द एपिग्लॉटिस. अब दिस ensure that food passes into the esophagus and stomach. उस वक्त जो फूड है वो एसोफेगस में चला जाता है और फिर एसोफेगस से होता हुआ स्टमक के अंदर चला जाता है, जिस वक्त लैरिंग्स थोड़ा कर जाता है. ठीक है, तो यानी अब लैरिंग्स का जो है ये क्योंकि ट्रेकिया के ऊपर होता है ना, तो ये लैरिंग्स का अक्सर जो एपिग्लॉटिस है ये बंद रहता है ताकि फूड का कोई जो पीस है वो उड़कर ट्रेकिया के अंदर ना चला जाए. तो जिस दौरान व्हेन वी ईट समथिंग तो वी शुड नॉट टॉक, हमें बोलना नहीं चाहिए. जिस वक्त हम कुछ खा रहे होते हैं, जिस वक्त हम कुछ पी रहे होते हैं ना, उस वक्त लैरिंग्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, उसका जो मुंह है थोड़ा खुल जाता है. तो उस दौरान अगर आप बोलेंगे ना तो फिर फूड का कोई भी पीस उड़ के ट्रेकिया में जा सकता है और शदीद खांसी का दौरा पड़ सकता है, बिकॉज ट्रेकिया इज नैरो वेंट पाइप. ट्रेकिया बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी फूड पार्टिकल को. तो फिर पता है कि क्या होता है आपको, अक्सर हुआ होगा आप लोगों के साथ, खांसी शुरू हो जाती है, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं. तो लैरिंग्स जो है ये दिस इज द पोर्शन विच इज प्रेजेंट अबव द ट्रेकिया. नाउ व्हाट इज ट्रेकिया? Trachea is also called windpipe. It lies below the larynx. Trachea बिल्कुल larynx के नीचे होता है and it is called windpipe, सांस की नाली. And it is in the front of esophagus. Trachea के पीछे esophagus है और बिल्कुल सामने हमारे, आप टच भी करें अपने नेक पे आपको ट्रेकिया फील होगा. It is a cartilaginous structure.
It is a continuation of the larynx and extend about 10 to 12 centimeter long and 2 centimeter wide. कितना लंबा होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर। वो 12 सेंटीमीटर का रूलर होता है ना, आप लोग अक्सर यूज करते हो। 10 to 12 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। And it is composed of 16 to 20 incomplete C-shaped cartilaginous rings. जो ट्रेकिया है इसमें ऐसे गोल गोल सी शेप रिंग्स बनी होती हैं और इनकम्प्लीट, बिल्कुल मतलब सी देखें तो ये कंप्लीट सी जो है बंद नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये राउंडेड है बट इट इज नॉट कम्प्लीटली राउंड। तो इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलिजिनस रिंग्स बनी होती हैं। ये रिंग्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, 16 से 20 इन नंबर। दीज रिंग्स आर इनकम्प्लीट posteriorly and they prevent collapse of the tracheal tube. The trachea also contains cilia which move in upward position to prevent foreign particles to go inside the lungs. ये जो रिंग्स होती है ना, ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। ये रिंग्स, एक रिंग फिर दूसरी रिंग फिर तीसरी, तो ये इस रिंग की वजह से ये ट्रेकिया इरेक्ट पोजीशन में रहता है और ये एक दूसरे के साथ ये ऐसे टकराता नहीं है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन वगैरह इजीली इससे पास होकर लंग्स तक जा सकती हैं। और द इनर साइड ऑफ द ट्रेकिया इज आल्सो म्यूकस एंड ciliated, and due to these cilia and mucus, if any germs or bacteria may be present in the air, they can will trapped here. Now next is the bronchi. Bronchi, there are two bronchi, okay? The two bronchi are formed when the trachea is divided at its lower end into right and left bronchus. जब ट्रेकिया ऐसे नीचे की तरफ जब 16 से 20 रिंग्स पूरी हो जाती हैं तो ट्रेकिया से ऐसे दो ट्यूब्स जो हैं वो निकलती हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियाई। ईच, हाँ, एक को ब्रोंकस कहते हैं और टू को ब्रोंकियाई। ब्रोंकस इज सिंगुलर एंड ब्रोंकियाई आर प्लूरल। Each bronchus enter into the right and left lung. राइट साइड का जो ब्रोंकस है वो राइट लंग में खुलेगा और लेफ्ट साइड का जो ब्रोंकस है वो लेफ्ट में खुलेगा। The right bronchus is wider and shorter tube. राइट साइड का जो ब्रोंकस है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है और साइज में थोड़ा छोटा होता है than the left one, than the left bronchus. The structure of bronchi is closely resemble that of the trachea. Bronchi का structure trachea जैसा ही होता है क्योंकि ये तो trachea से ही arise होता है ना, तो इसका structure trachea यानी it is also composed of C-shaped, incomplete C-shaped cartilaginous rings. Now, each bronchus divide and subdivide into smaller branches called bronchioles to form an airway after entering each lung. अब जो राइट साइड का ब्रोंकस है और लेफ्ट, ये दोनों ब्रोंकस जब अपने एंड पे पहुंचते हैं तो ये मजीद छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जो है ना, दे एंटर इनसाइड द लंग्स। जैसे ये राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस जैसे लंग्स में लंग्स तक पहुंच जाते हैं, अब लंग्स के अंदर ये मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं विच आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। तो यानी फिर ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, दे गो टू द अल्वियोलाई, अल्वियोलाई तक फिर ये जाते हैं। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे अंगूर का एक शाख हो, फिर उससे छोटी छोटी शाखें निकलती हैं और फिर वो अंगूर के दानों के साथ एक एक छोटा छोटा जो स्टॉक होता है ना वो अटैच होता है। तो वो जो अंगूर के जो दाने हैं ना, दे आर जस्ट लाइक अल्वियोलाई। और उनका हर अंगूर के दाने के साथ एक छोटी सी आपने देखी होगी डंडी सी अटैच होती है। दीज आर द ब्रोंक्यूल। और फिर वो पूरा जो अंगूर का गुच्छा होता है वो एक शाख के ऊपर होता है। दिस इज द ब्रोंकस। अंगूर के गुच्छे को सामने रखें, ये बिल्कुल ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल और अल्वियोलाई बिल्कुल इस शेप के होते हैं। व्हाट आर अल्वियोलाई? अल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अल्वियोलाई क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसके? लंग्स के। ईच ब्रोंक्यूल सब डिवाइड इनटू अल्वियोलाई। ब्रोंक्यूल जो है ये डिवाइड होके किस में खुलते हैं? अल्वियोलाई में। The alveoli from the gas exchange surface where the exchange of the gases takes place between lungs and blood, and it is called external respiration. Alveoli are those surfaces from where oxygen will move to the blood capillaries. जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है लंग्स में
और किस तरह पहुंची है? From nose, then from to the pharynx, then to larynx, then to trachea, then to bronchus, या bronchi, from bronchi to the bronchioles. अब ब्रोंक्यूल से ये ऑक्सीजन लंग्स में आ गई ना, अब लंग्स में ये ऑक्सीजन जाएगी अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई के ऊपर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। नाउ फ्रॉम द अल्वियोलाई दिस ऑक्सीजन विल गो टू द blood capillaries. Now, what are lungs? Lungs are the main respiratory organs. Do you know? कितने होते हैं नंबर में? There are two lungs in each human body. Human body has two lungs, right and left one, on each side of the thoracic cavity. जहां lungs present होते हैं उस cavity को कहते हैं thoracic cavity. The right and left lungs are unequal in size. जो right lung है ना और left lung ये unequal है size में. Each lung is composed of some lobes. The right lung is composed of 3 lobes. Right lung जो है ना ये 3 lobes की बनी होती है. कितनी lobes की बनी होती है right lung? 3 lobes. That is the superior, middle and inferior lobe. Superior, middle and inferior, while the left one is composed of only 2 lobes. तो it's mean right one क्या है? Size में बड़ी है. Right one is larger in size as compared to the left one. The left lung is composed of only 2 lobes, that is the superior and inferior. The right lung represents 56% of the total lung volume, while the left one is smaller in volume because of asymmetrical position of the heart. क्यों ऐसा है? Right lung or left lung, why they are unequal in size? Due to the asymmetrical position of the heart. Do you know where heart is present? Heart is present towards the left side. थोड़ा सा हार्ट जो है हमारा ये लेफ्ट साइड की तरफ है. इट्स मीन कि लेफ्ट साइड की तरफ जो है लंग होगी वो हार्ट की वजह से थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, थोड़ी सी छोटी रह जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड की जगह हार्ट ने घेरी हुई है ना. तो लेफ्ट साइड की जो लंग है वो साइज में बेचारी छोटी हो गई है ड्यू टू हार्ट, और राइट साइड जो है वो उसको अच्छी खासी जगह है तो वो साइज में बड़ी है. Which lung is smaller? Left one. Because why left one lung is smaller than right one? Due to the asymmetrical position of the heart. ठीक है? Heart is towards the left side. The lungs are very spongy. बहुत ज़्यादा spongy होते हैं. Why they are spongy? Because of the presence of million of alveoli. Alveoli की वजह से ये बहुत ही spongy होते हैं. The lungs are composed of bronchi, smaller air passages, alveoli, connective tissues, blood vessel, lymph vessels and nerves. Lungs के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? Bronchioles गए होते हैं ना lungs के अंदर, और air sacs यानी कि alveoli होते हैं. Alveoli are also called air sacs क्योंकि इसमें हवा जाती है, एयर जाती है. अल्वियोलाई होते हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं लंग्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, लिम्फ वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं. दे ऑल आर प्रेजेंट इन लंग्स. नाउ डू यू नो व्हाट इज प्लूरल मेम्ब्रेन? व्हाट इज प्लूरल मेम्ब्रेन? हर एक जो ऑर्गन है ना उसको अल्लाह ने उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटेक्टिव कवर चढ़ाया हुआ है. इसी तरह जो लंग्स है they are also protected by membrane, which are called pleural membrane. The pleural membrane is the membrane which cover the lungs. Pleural membrane is the membrane which cover the lungs. इसी तरह we have studied in first year. What is the name of the membrane of the brain? Do you remember? Hmm? Meninges. Meninge is the membrane of the brain. What is the membrane of heart? Cardiac membrane. Membrane of the heart is called cardiac membrane. Okay, what is the membrane of kidney? The membrane of kidney is called renal membrane. And the membrane of lungs is called pleural membrane. Pleural membrane is also further composed of 2 layers. Okay.
that is the outer layer and inner layer. The two layers of the pleura are separated by thin film of serous fluid. जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, ये टू लेयर्स की बनी होती है और इन टू लेयर्स के दरमियान फिर फ्लूइड होता है और जहाँ पे फ्लूइड आ जाए वो मजीद किसी भी चीज को मजीद प्रोटेक्ट कर देता है। और इसका ये भी फायदा है इस मेम्ब्रेन का कि ऑक्सीजन वगैरह जो है ये लंग से बाहर लीक नहीं हो सकेगी, ठीक है, और फ्रिक्शन भी कम से कम होगी क्योंकि डू यू नो व्हेन द एयर कम इनसाइड द लंग्स दे एक्सपेंड, दे एक्सटेंड, फैल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं और जब ऑक्सीजन इनसे निकलती है ना ब्लड कैपिलरीज की तरफ तो दे कॉन्ट्रैक्ट, तो यानी लंग्स जो है ये दे रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, दे एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो इनका जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह अगर इनके इर्द गिर्द प्लूरल मेम्ब्रेन ना होती तो फ्रिक्शन होता, ये थोरेसिक कैविटीज में होते हैं ना लंग्स, तो थोरेसिक वॉल्स के साथ ये टकराते, फ्रिक्शन होता तो ये खराब होने का खतरा था। तो इस प्लूरल मेम्ब्रेन की वजह से इनके दरमियान थोरेसिक वॉल और लंग्स के दरमियान फ्रिक्शन कम से कम हो जाती है, ओके, और ऑक्सीजन भी या एयर भी बाहर लीक। तो ये सारा था डिटेल्स अबाउट ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ आप लोग डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही होगी आपकी बुक में, आप लोग देखें हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें ऊपर नेजल कैविटीज भी शो हुई है और ओरल कैविटी भी शो हुई है। ओरल कैविटी जो है वो फेरिंग्स में खुल के एसोफेगस में जाती है, जबकि नेजल कैविटी जो है वो फेरिंग्स से होती हुई ट्रेकिया में जाती है, फेरिंग्स लैरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया से फिर आपने दो आपको टू पाइप्स नजर आ रही होंगी, दे आर दी ब्रोंकस या ब्रोंकियाई। अब ये जो एक आप देखें, एक ब्रोंकियाई गो टू वन लंग एंड द अदर वन गो टू दी अदर लंग। जैसे लंग में जब ये जाती है ना तब वहां पे ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और फिर हर एक ब्रोंक्यूल जो है ना वो अल्वियोलाई के अंदर जाता है, ओके। और साइज में भी आप थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा होगा आपको, राइट वन लंग इज लार्जर इन साइज और लेफ्ट वन इज स्मॉलर इन साइज। ये जो लार्जर राइट लंग है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 lobes, ओके, एंड लेफ्ट वन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 lobes। साथ में आपको इसका जो नजर आ रहा है एक ब्रोंकस और उसके अलावा ये अल्वियोलाई का भी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको। Now, next topic is lung volume and capacity. What is the meaning of lung volume and capacity? Lung volume and lung capacities refer to the volume of the air associated with different phases of the respiratory cycle. यानी एक respiratory cycle complete होने में कितनी ऑक्सीजन जो है वो लंग जो है वो कैरी कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द लंग टू कैरी ऑक्सीजन इन वन रेस्पिरेटरी साइकिल, कितनी मिकदार में ऑक्सीजन जो है वो लंग जो है वो अपने अंदर भर सकता है, कैरी कर सकता है। द एवरेज एडल्ट ह्यूमन हैज अ लंग कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स। जो लंग है ना एक, वो कितनी लीटर ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है, इसकी कैपेसिटी क्या है, 5 लीटर। अब ऑक्सीजन तो एक गैस है, यहाँ इसकी क्वांटिटी लीटर्स में क्यों बताई गई है? हम्म, गैस जो है, अब लीटर इज द यूनिट ऑफ लिक्विड और ऑक्सीजन तो गैस है। यस, जो ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाती है तो फिर आपके जितना भी रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इट हैज इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर से ये सारा जो है मॉइस्ट है, ये ऑक्सीजन को, ये एयर को मॉइस्ट कर देता है, गीला कर देता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी फिर यूनिट को हम लिक्विड के यूनिट कंसिडर करेंगे ना, लीटर मिलेंगे इसके यूनिट। तो और वन लंग हैज हाउ मैनी कैपेसिटी, लंग है द कैपेसिटी ऑफ द लंग इज 5 लीटर, बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस कैपेसिटी इज यूज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। अब जरूरी नहीं है कि 5 लीटर जो है वो लंग में जाएगी, बस थोड़ी बहुत, मतलब ये चलता रहता है लंग, लेकिन कैपेसिटी जो है ना, एक लंग जो है वो 5 लीटर तक
लेके जा सकता है, लेकिन जाती जो है थोड़ी थोड़ी मिकदार बाहर निकलती है, अंदर जाती, इस तरह है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना स्मॉल अमाउंट में होता है। About 500 milliliter volume of the air is exchanged during each cycle of breathing. कितना? जस्ट 5 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर जो है ऑक्सीजन एक सांस के साथ अंदर जाती है। ब्रीथिंग मीन सांस के साथ, ठीक है। विच इज टर्म एज टाइडल वॉल्यूम, और इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम यानी एक ऑक्सीजन आपने सांस ली और जो ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर गई, इसको जो है कितनी गई? 500 मिलीलीटर, और इसको हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम इसका। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ forcible expiration which is about 1.5 liter is termed as residual volume. अब जब lungs जो है ना, लंग में जाती है ऑक्सीजन, तो रहती है, कितनी रहती है ऑक्सीजन लंग्स के अंदर? 1.5 लीटर तक जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में हर वक्त रहती है। चाहे आप एक्सपायरेशन मतलब बाहर आप निकालें, एक्सपायरेशन मीन बाहर सांस, बाहर की तरफ सांस आप निकालें भी, तब भी जो है आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन रहती है 1.5 लीटर तक, और उसको हम कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो जब आप सांस अंदर लेकर जाते हो, और जब आप अंदर लेकर जाते हो तो 500 मिलीलीटर वॉल्यूम जो है वो जाता है, और फिर उसके बाद जब आप सांस बाहर की तरफ निकालते हो तो उसमें 1.5 लीटर जो है ऑक्सीजन वो लंग्स के अंदर ही रहती है, और उसको हम कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। Okay, number next is the mechanism or control of breathing. What is the mechanism of breathing? Breathing mechanism consists of two steps. Now, that is the inhalation and exhalation. ना अब exhalation और inhalation के process को कौन control करता है? Who control the process of breathing? That is the inhalation and exhalation. क्या आप इसको इनवॉलेंट्री कहेंगे या वॉलेंट्री? आप अपनी सांस पे आपका इख्तियार है, आप कंट्रोल कर सकते हो। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज मोस्टली इनवॉलेंट्री। आप इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस आर दोज व्हिच टेक्स प्लेस विदाउट आवर विल। हम अगर बातें भी कर रहे होते हैं, हम मतलब हम ये फिक्र नहीं होती कि अब हमने सांस लेनी है, जी आप अब रुक जाते हैं, हमने अभी सांस लेनी है, बस ये प्रोसेस है जो खुद ब खुद होता रहता है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये प्रोसेस चलता रहता है, इनवॉलेंट्री है। लेकिन टू सम एक्सटेंट वी कैन कंट्रोल आवर ब्रीथिंग। बाज दफ़ा हम किरत करते हैं तो कोई ख़ास टाइम के लिए हम अपनी सांस को रोक देते हैं ना, तो जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टू सम एक्सटेंट इट इज वॉलेंट्री, बट मोस्टली इट इज इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ओके, और ये इसको कंट्रोल कौन करता है? वेयर इट्स कंट्रोल सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड व्हाट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा? You have already studied about brain in class 10th and class 9. Brain, the last portion of the brain is medulla oblongata. Medulla oblongata is connected to your spinal cord. मेडुला ऑब्लोंगेटा बिल्कुल आपके नेक के बिल्कुल पीछे की तरफ देखें, जहां से आपका वर्टेब्रल कॉलम स्टार्ट होता है ना, यहाँ तक आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, द लास्ट पोर्शन ऑफ योर ब्रेन। और आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को, आपके ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ओके, और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी वहाँ पे भी आपके पास दो वो हैं सेंटर्स हैं। इंस्पायरेटरी सेंटर है, ठीक है, और एक्सपायरेटरी सेंटर है। इंस्पायरेटरी मीन इन, अंदर आप सांस लेते हैं ना, अंदर की तरफ, जब ऐसे अंदर की तरफ आप जब सांस लेते हैं, यानी इनहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन या द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, उसके लिए जो सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी सेंटर। और वो कहाँ पे है? The ventral portion of the respiratory center act to increase the rate and depth of inspiration. जो medulla oblongata का ventral side होता है, ये I have already told you about the sides. Ventral सामने वाला, dorsal पीछे वाला, lateral sides वाला,
ठीक है। तो वेंट्रल मीन सामने वाला, मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो फ्रंट पोर्शन होता है, सामने वाला पोर्शन होता है, इट इज द इंस्पायरेटरी सेंटर। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का डॉर्सल और लेटरल साइड्स होते हैं, लेटरल और डॉर्सल पोर्शन होते हैं, दैट इज द रेस्पिरेटरी सेंटर। दे कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ expiration, okay, exhalation, expiration, okay. Now the there are also some nerves, some phrenic nerves. The respiratory center communicate with the intercostal muscle by mean of intercostal nerves and with diaphragm. तो ये जितना भी हम सांस लेते हैं, इसमें हमारा जो डायफ्रेम होता है, हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ओके। और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? अवर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जब तक आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा ठीक रहेगा तो आपका प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग भी